Logical evening, friends. Today I'm here for analysis of VIOM, which is conducted on Sunday, and it's a QT section. So analysis for QT section. Let's start. Here, before starting the analysis, reaching to first passage, two passages were there, one from arithmetic and one from mensuration. In arithmetic, we have covered percentage, average, ratio, and proportion. In mensuration, circles and cylinders. And one more part is there, it's a cuboid. It is also covered there. And if I'll talk about timings, 10 to 12 minutes are sufficient for both of them. And those who are attempting good attempts means 4 to 5 questions. It's a good attempt. Excellent score is 8 plus. Good score is called 5 plus. And those who are scoring 3 plus, it means they can say decent score is there. Let's come to first passage, and we are highlighting few figures here that it is based on internet, and few more things are given about internet users base of about 636.77 million in 2020, 40% of the population, despite being second largest, and this is behind China, 650 million. It is in China. And similarly for US, 266 million, 84%, and France, 54 million. These data is very important here. And now India e-commerce market was worth rupees 3.9 billion dollar in 2009, and it is e-commerce market is estimated rupees 28,500 crore rupees for 2011, and 22% over the 54,800 crore rupees in size of 2015. That is the travel market in India, online travel market. So here, e-tailing industry is estimated rupees 3,600 crores in 2011, and 53,000 it will grow up to 53,000 crore rupees in 2015. The market went up from 12.6 billion in 2013 to e-retail in 2.3 billion US dollar. About 79% of India's e-commerce market is given like this, and 100 million marks by end of the year 2016. 1,07,800 crores, that is year 2015, it was a e-commerce overall. And few more figures are given here, and whichever figures are using in the questions, we will uh, read that part, and we'll get to know about them. Let's come to first question. The average of internet users of India and China, it is given average together is approximately 300% higher than the average internet users of US and France. Let's see what the data is given. You can see in this data, we have started the solution here. That is given internet users in India, it is 636.77 million. And in China, it was given 650 million. So if you can add them, then divide by 2. So after dividing by 2, you will get 643.385 million. And similarly, if you are going for US and France, and here internet users are, that is in US it is 266 million, and in France it is given 54 million. It's very simple data. It is given here only in starting only. Like see, see you can see here 636.77 to 66, 50, 54. All these things are given here, and after adding them, you can just divide by 2. This is 160 million, and he is asking that how much higher. So if you are subtracting them, so you will get one amount, and whatever amount is there, whatever amount is here, so 48,
and we can divide this data by 160, and it is 16 3 are 48, and you are finding out percentage, so approximately 300%. So I think this data is right. Now second one is there, the estimated value of online travel market in India for 2015 is 2.5 times the estimated value of India e-commerce market for 2011. Let's see what is given here for the second one. देखते हैं हम इसमें क्या दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ट्रैवल मार्केट, ऑनलाइन ट्रैवल मार्केट इन इंडिया 2015, I can change here, that is 2015, it is given here that 54,800 crore rupees, and e-commerce is given, this was online, and it was 2011, e-commerce was given 53,000, uh, 28,500 crore rupees, and this is the e-commerce, and he is asking what is the estimated value of online travel, this and this, it is how much time is this. If you are dividing to 28,500, you are dividing 54,800 by 28,500, you will get approximately 2, because 28 is here and 54 is here. 27 2 ja 54, but here is 28, so it is not exactly 2, it is quite less than 2. So quite less than 2 means it should be 1 point something, so 1.97 something, but here it is given 2.5, therefore this option is not correct. The third option is there. The difference in is estimated value of Indian e-tailing industries 2011 and 2015 is 49,400 crore. So let's see what is given here. We can see with the help of different color. Let's see what is given here. Now, in the third one, e-tailing industry in 2011, it is given 3,600 crore rupees, and it is reached in 2015, e-tailing industry 53,000 crore rupees. And if you can subtract them, that is 49,400 crore rupees, and it is exactly same which is given in the option. So I can say first one and third one both are right, therefore option C is right. Let's come to next question. Question number 112. The estimated value of Indian e-commerce market in 2011 is what percent more or less the estimated value of Indian e-tailing industry in 2015? This is the question number 112. So in 2011, if I am saying that 2011, that is 28,500 crore rupees, and in 2015 it reached, that is e-tailing industry is reached up to 53,000 rupees crore rupees. And if you are subtracting both of them and dividing, because he is asking that how much percent, I think so, how much percent, what is the percent of this? It is more or less. So if you are subtracting them, whatever difference is there and difference divided by 53,000, so approximately it is coming 46.22%, means option B is right. So very simple question. Now comes to next question 113. Also India e-commerce, again we are here to underline few portions like 83 billion, 150 billion in 2026 and 22, and here is 12 billion account to account. This is 53% of 21 to 22, and it is digital wallet have also grown up 5% to 35% of POS value. Global payments reports also is there, and that 2026 accounts to account transaction value is expected to grow by 195%. It is coming $36 billion. Now let's see what is the question. If in 2030 account to account transaction values rises up by 44.44%, and with respect to the expected value of account to account transaction of 2026, find the average both of the values. Let's see what will be the question and how to solve this one. In this question, what we have to do, and let's see, 44.44%, it means it is 4 by 9, and account to account transaction in 2026, here it is given
that is $36 billion. $36 billion. And if you saying that it is grown up by 44.44% in 2030. So how much dollar is there? 36 by 13 by 9, 9 4 ja, and here we can say 52 billion, $52 billion. It is in dollar. And what he's asking, he's asking about the average of them. You just add them, you will get 88 divided by 2, it is 44. So it's a very simple question. Easily you can solve this. Next question is there 114, and in this question, find the ratios between the online sales of jewelry in 16, 17, 2016, 2017, 2018, and 2019. If the online sales of jewelry, so I can write down here 20 also, that it will be clear for you. Now increased by 13.33%. I'm writing here 13.33%, 12.5%, and 21.42%. Let's see. I will start from here only, like 21.42%. In 21.42, I can write down 3 by 14. And now at least we can read it here that in 2019 it is increased by 21.42% and was 3 by 14. तो यदि आप समझें तो 14 plus 3 it was 14 is to 17. Next is there 12.5% in decreased. It is decreased in 2018. 17 से 18 में ये डिक्रीज हुआ है 2018 में 12.5%. 12.5% को हम लिख सकते हैं 1/8, और अगर ये डिक्रीज हुआ है तो हम इसे लिख पाएंगे यहाँ 7 आएगा और यहाँ 8 आएगा, क्योंकि ये 17 से 18 में डिक्रीज हुआ है. And the 13.33%, that is 2 by 15 again means, because we are adding them, so again you will get 17. Therefore I am using this word 17, but it is here again it is increased. Increased means in 16 to 17 it is increased. So 17 is to 15. So this is 17 is to 15. Now let's see how to solve this. It's a very simple process. अगर आप समझें तो इसको समझ में आएगा कि क्या करना होगा, क्योंकि उसने तीनों का रेशो, चारों का रेशो निकाला हुआ है. एज्यूम दैट द ऑनलाइन सेल्स ऑफ ज्वेलरी इन 2019 इज दिस. इस अमाउंट का कोई खास यहाँ पर यूज नहीं है, कुछ उपयोग नहीं है, हमें सिर्फ रेशो निकालना है. इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर 7 है. अगर मुझे इसको भी 14 करना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. तो ये पूरा का पूरा नंबर मल्टीप्लाई होगा. दिस विल बिकम 14 एंड दिस विल बिकम 16. नाउ अगर मैं कहूँ कि 17, 18, 19 में क्या रेशो हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ 16 is to 14 is to 17. और मेरे पास अभी 2016-17 में रेशो बाकी है, वो है 17 is to 15. अब एक और टास्क हमारे पास है, वो दिख रहा है हमको क्लियरली कि हमें क्या करना होगा. हमें इन दोनों को इक्वेट करना होगा. तो नेचुरली हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, और इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से. आई होप यू आर गेटिंग. और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप 16 से, तो मुझे लगता है कि आप इजीली ये देख पाएंगे कि यहाँ पर आएगा आपका अ, मैं कुछ 17:15. ये जो इंक्रीज हुआ था शायद इसको मैंने उल्टा लिख दिया है, इसको 15:17 आना चाहिए. अगर ये 15:17 आएगा तो शायद सही रहेगा, क्योंकि वो इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ है. सो प्लीज करेक्ट दिस. अगर हम इसको 15 मल्टीप्लाई बाय 16 करते हैं तो इजीली इट विल गेट 240, एंड हियर इट यू विल गेट 272, देन 238, एंड देन 289, बिकॉज हियर वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 17. यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 16 से. तो इस तरीके से ये अ, आपके पास रेशो आ जाएगा, और आप रेशो देख सकते हैं किससे मैच कर रहा है. ये मैच कर रहा है ऑप्शन डी से, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट है
Question number 115. This is the last question for this first passage. If e-commerce company Amazon and Flipkart start a partnership for a new project with initial amount of rupees 12,500, 13,500 for 6 months, Amazon and Flipkart added 2,500 and 1,500 crores respectively, then find the share of their profits. तो प्रॉफिट का शेयर उसी रेशो में होता है जिस रेशो में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होता है और कितने कितने मंथ के लिए किया होता है। यदि आपको ये आइडिया है तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। समझते हैं हम लोग इसको क्या करना होगा। इन्होंने जो पार्टनरशिप की है और जो अमाउंट दिया है, देखिए ई कॉमर्स कंपनी अमेजन, इसने दिया है 12,500। ये अमेजोन की बात हो रही है और ये फ्लिपकार्ट की बात हो रही है। इसने दिया है ये 6 मंथ के लिए, इसने कुछ और अमाउंट ऐड कर दिया, तो दे एडेड द अमाउंट 2,500 रुपीज। तो 12,500 में हमें 2,500 ऐड करना होगा, तो ये हो जाएगा 15,000। तो इसने 15,000 रुपीज अगेन इन्वेस्टेड फॉर 6 मंथ। अगर हम बात करें फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट ने 13,500 पहले दिया है फॉर 6 मंथ, एंड देन ही एडेड 1,500 करोड़ रुपीज। तो अगर मैं 13,500 में 15 करोड़ रुपीज ऐड करूं, तो अगेन यू विल गेट 15,000 करोड़ रुपीज, एंड अगेन इट इज फॉर 6 मंथ। और दोनों का अगर हम रेशो निकालते हैं और रेशो निकालने के बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ दोनों जगह 6 6 है, कॉमन ले सकते हैं, इवन दो 1000 भी है, काफ़ी कुछ इजीली कैंसिल हो जाएगा। तो ये रेशो आ रहा है चिल्ड्रन 55:57, बहुत इजीली आ जाएगा। और इसके आने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ऑफ अमेजोन, दैट विल बी, ये अमेजोन का प्रॉफिट है, दैट इज 55 अपॉन 55 प्लस 57, यू कैन ऐड देम, दैट इज 112, and total profit was there 3,360. If you calculate them, अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 1,650, and easily you can see the profit of Flipkart also, that is 57 upon 112 multiplied by 3,360, and it will be 1,710। इस टाइप से फ्लिपकार्ट का प्रॉफिट अमेजोन से थोड़ा सा ज़्यादा है, और आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा है क्योंकि प्रॉफिट इतना हुआ है। अगर हम दोनों वैल्यूज़ देखें तो मेरे ख्याल से फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। आगे बढ़ते हैं और सेकंड पैसेज की तरफ आते हैं। इसमें एक विधिज्ञा क्लैट स्टूडेंट्स को लेकर गए हैं एक टूर टूर पर, और इस टूर में उन्होंने एजुकेशन ट्रिप था, इस ट्रिप में उन्होंने देखा है कि कुछ टॉम्स वगैरह हैं, क्योंकि उस ओल्ड फोर्ट में जो विंध्याचल फॉरेस्ट में सिचुएटेड है, इट वाज फ्रॉम बिल्ट फ्रॉम 1562 टू 1598। इट रीचेस अप टू 51 मीटर्स। ध्यान रखिएगा कुछ खास बात है इसमें, इसमें है यूनिट्स की खास बात, कहीं मीटर है कहीं सेंटीमीटर है, उसका ध्यान रखना होगा। 51 meters and this is 44 meters. It is one of the largest domes ever built. तो ये सबसे जाइंट डोम है, इस जाइंट डोम की बात हो रही है। इसमें हाइट और diameter is given. This is the diameter, it's not a radius. At each of the four corners of the cube is a dome-shaped octagonal tower, 7 stories high with a staircase inside, वगैरह वगैरह दिया है। रेडियस का रेशो दिया है 1:3। Circumference of both the circles is given 176 सेंटीमीटर। और ये एक ऐसा फिगर है जो इजीली रेडियस निकालने के काम आता है। रेक्टेंगल है 5 to, इसमें लेंथ एंड ब्रेथ का रेशो दिया है 5:3। आगे बढ़ेंगे तो 4 pillars are there, 2 domes more are there backside which are hemispherical, and one big dome at the center. It is the finest example of symmetry. Okay, आगे बढ़ते हैं और इसमें लिखा हुआ है कि मिस्टर विहान विहान is worried about the bird's water, and therefore he found a flexible blue colored plastic rectangular sheet. This is the size of this, it is given in centimeter. Even though this 176 is also given in centimeter, he rolled it along its length and joined opposite ends using a tap. He wanted a circular base for this cylinder and searched for the another sheet 15 by 15 and 15 by 30. तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ आते हैं और देखते हैं कि इसे इसे करने में हमें किसकी आवश्यकता पड़ रही है। हमें पड़ रही है कि डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ध्यान से देखें, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या करना है। और इस क्वेश्चन में हमें डायमीटर ऑफ रेक्टेंगल चाहिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल चाहिए, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन। आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ
गिवन है 176, दिस इज द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ बोथ द सर्कल्स 176 एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज आल्सो दिस सेम विच इज इक्वल टू पेरीमीटर। तो इसी के थ्रू हम निकालने की कोशिश करते हैं। हम निकाल रहे हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। मुझे लगता है लेंथ और ब्रेथ का कुछ रेशो दिया हुआ है, लेंथ दिया है 5:3, आप देख सकते हैं। मैं इसे ले रहा हूँ 5y प्लस 3y इक्वल्स टू 176। 5 प्लस 3 8, 8 टू जा 16, 16y एंड y यहाँ से आ जाएगा 11 सेंटीमीटर या 11। और इसके अलावा हमको यहाँ से हम इजीली लेंथ निकाल सकते हैं। लेंथ होगी हमारी 5y दैट इज 55, और हम यहाँ से ब्रेथ निकालेंगे दैट इज 33 सेंटीमीटर। आफ्टर गेटिंग ऑल दीज थिंग्स, हमको बात करनी है, हमें बात करनी है रेडियाई ऑफ गिवन सर्कल्स। तो देखें आप, दो सर्कल्स दिए हुए हैं क्योंकि इसकी सर्कमफ्रेंस गिवन है। सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ बोथ द सर्कल्स इज गिवन 176 सेंटीमीटर। तो रेडियाई ऑफ देम, क्योंकि उसका रेशियो भी गिवन है, रेशियो दिया हुआ है 1:3। अगर आप ध्यान से देखें तो एक x हो जाएगा और एक 3x हो जाएगा। और सरकमफ्रेंस होती है चिल्ड्रन 2πr1 और 2πr2। हमने दोनों को ऐड किया है, 2π कॉमन ले लिया है, r1 प्लस r2। यहाँ से हमारी 2πx प्लस 3x रेडियाई हो जाएगी, और ये दिया है 176 सेंटीमीटर। इसको सिंप्लीफाई करें, पाई की वैल्यू 22/7 पुट करें और ये हो जाएगा 4x। और यहाँ इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। बहुत इजीली हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल पाएंगे, और जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 7 सेंटीमीटर। अगर x 7 है और y 11 है, लेंथ एंड ब्रेथ निकाल चुके हैं, तो यहाँ से हम r1 और r2 निकाल सकते हैं। अगर r1 को हमने x लिया हुआ है तो x होगा हमारे पास 7, और r2 को लिया हमने 3x, तो वो हो जाएगा 3 7 जा 21। तो इस प्रकार से ये 21 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर में हमारे पास रेडियस, लेंथ एंड ब्रेथ आ चुकी है। उसने पूछा कुछ और है, उसने पूछा है कि बिगर सर्किल की जो रेडियस है वो और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दोनों का डिफरेंस निकालना है। बिगर सर्किल की रेडियस है 21, लेंथ है 55, दोनों का डिफरेंस होगा 34। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। इन अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड पार्क हार्ट ऑफ द सिटी, इसमें कुछ डेटा दिया हुआ है। अगर ध्यान से देखें तो वो बात कर रहा है डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर दिस 36.36% ऑफ लेंथ, हाइट इतनी है। द डायमेंशंस ऑफ द सिलेंडर्स आर ऑफ हाइट 2 मीटर एंड डायमीटर इज 0.6 मीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल बीम्स एंड क्यूबॉइड टुगेदर। ध्यान से देखें, हम इसकी बात कर रहे हैं 117 की, और इसमें हमें फाइंड करना है वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल सिलिंड्रिकल बीम्स एंड क्यूबॉइड। तो बीम्स किस टाइप के हैं? बीम्स हैं सिलिंड्रिकल, और क्यूबॉइड हमारे पास है। तो क्यों ना एक काम करें, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल बीम और क्यूबॉइड दोनों को निकाल लेते हैं हम एक साथ। अगर हम दोनों को एक साथ निकालने की कोशिश करते हैं तो ये हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास बीम्स की बात कर रहे हैं, और बीम्स कितने हैं देखें हम लोग यहाँ पर। सिलिंड्रिकल बीम्स हमारे पास 2 हैं, तो हमें लिखना होगा 2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम होगा सिलेंडर का πr² और क्यूबॉइड का होगा L×B×H। हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे 2 दैट इज 22/7। रेडियस होगी, आई थिंक रेडियस इज गिवन, डायमीटर 0.6 है तो रेडियस हो जाएगी 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3, और हाइट होगी 2 मीटर्स। ये सिलेंडर की बात हो गई। और बात हो रही है फिर, उसने कहा है कि LBH, तो वो हो जाएगा 1.1 मल्टीप्लाई बाय 0.5, और यहाँ हमारे पास ये दिया हुआ है कि इट विल बी 36.36%, तो ये हो जाएगी 0.4, इसकी हाइट होगी। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ रहा है हमारे पास 0.22, और ये आएगा 1.13। दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आने वाला है 1.35 मीटर क्यूब। क्यूबिक मीटर बोल सकते हैं या मीटर क्यूब बोल सकते हैं, और 1.35 मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ें और क्वेश्चन नंबर 118 देखें।
हाउ मच क्लॉथ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द जाइंट डोम whose internal radius is 5.6 meters। अगर किसी डोम को कवर करना है तो उसमें इंटरनल रेडियस काम नहीं करेगी, क्योंकि अंदर से नहीं होगा, वो बाहर से होगा। इसका मतलब हमको चाहिए एक्सटर्नल रेडियस। और इस पैसेज में अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें दो चीजें दी हुई हैं। जाइंट डोम की हाइट गिवन है 51 मीटर्स और उसका डायमीटर गिवन है 44 मीटर्स। तो हमें इंटरनल डायमीटर जरूर दे दिए है उसने, लेकिन उसका यूज नहीं होगा, इंटरनल रेडियस का कोई यूज होने वाला नहीं है यहाँ पर। तो हम समझते हैं, हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा क्योंकि हमको उसको कवर अप करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ डोम कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम जाइंट डोम की बात कर रहे हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ जाइंट डोम इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। इसको अगर समझें तो कुछ इस तरीके की बात हो रही है। ये सिलिंड्रिकल पोर्शन है और डोम इस टाइप से बना हुआ है। डोम को आप इस टाइप से बना सकते हैं। ये जो पोर्शन होगा ये हेमीस्फेरिकल होगा और ये नीचे वाला पोर्शन जो होगा वो सिलिंड्रिकल होगा। इसलिए हम दोनों का वॉल्यूम निकालने वाले हैं, वॉल्यूम नहीं, कर्व सरफेस एरिया निकालने वाले हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल होगा 2 पाई आर एच और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होगा 2 पाई आर स्क्वायर, इफ यू नो द फॉर्मूला। दोनों से हम 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं। एक अच्छी बात यह है कि दोनों की रेडियस सेम है, यहाँ जो रेडियस होगी वही रेडियस इसकी भी होगी। तो यहाँ होगा एच प्लस आर और हम वैल्यू पुट करके सॉल्व करें। 22/7, रेडियस इज 22 मीटर्स, हाइट इज 51 एंड हियर इज 22। इस पूरी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करें तो ये 10,000 समथिंग आ रहा है, 94.85। अगर हम इसको अप्रोक्सीमेटली देखें तो हम बोल सकते हैं ये 10,000 मीटर स्क्वायर आएगा। दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड दिस मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू कवर अप द डोम्स। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं और सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज द शीट 90 centimeter by 15 centimeter sheet is bought for 2,700। Circular plate 4.5 centimeter radius are made by cutting the sheet. If shopkeeper wants to earn 11.11%, then find the selling price of each circular plate. Consider machine cost for each plate is। मशीनिंग कॉस्ट का मतलब है उसको कट करने में, उसको ज्वाइंट करने में जो भी कॉस्ट आ रही होगी वो 2 रुपीज 50 पैसा है। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसका जो परचेज रेट है, मतलब कॉस्ट प्राइस है शीट का, वो निकाल लेते हैं। क्योंकि टोटल दिया है उसका 2,700, उसको अगर हम डिवाइड करें उसके एरिया से, तो एरिया है 90/15। तो यहाँ से ये आ जाएगा ₹2 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये सेंटीमीटर के टर्म्स में आएगा। और हम निकालने वाले हैं अब एरिया ऑफ वन सर्कुलर प्लेट। इसका एरिया कैसे आ जाएगा? सर्कुलर प्लेट का एरिया आएगा πr²। पाई 22/7, रेडियस हमने निकाल चुके हैं, मेरे ख्याल से दी हुई है 4.5, ये गिवन है। 4.5 मल्टीप्लाई बाय 4.5, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आता है 63.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया है एक प्लेट का। अब इसमें इस प्लेट के एरिया में हमें मल्टीप्लाई करना होगा इस रेट से, क्योंकि इस रेट की शीट से ही वो बन रही है। और हम निकाल रहे हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा? हमें इसमें ऐड करना होगा एक और चीज, जिसको बोलेंगे हम लोग मशीन कॉस्ट पर प्लेट, दैट इज 2 रुपीज 50 पैसा। ऐड करने के बाद हमारे पास आ रहा है 129.78 रुपीज। अब हमें 11.11% के हिसाब से इसमें ये कॉस्ट प्राइस है, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है और सेलिंग प्राइस में हमको इतना प्रॉफिट परसेंट जोड़ना है। तो 129.78 अगर आप देखें तो ये हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आता है 144.2 रुपीज फॉर पर प्लेट। तो उसने पूछा था कंसिडर मशीन कॉस्ट दिस, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच सर्कुलर प्लेट। तो ये दिस इज द ईच सर्कुलर प्लेट का ये कॉस्ट रहेगा 144.2, मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन बोलता है इफ कॉस्ट ऑफ फ्लेक्सिबल ब्लू कलर्ड प्लास्टिक रेक्टेंगुलर शीट इज ₹3.25। दो टाइप की शीट्स हैं, प्लास्टिक rectangular sheet is this and another sheet for circular base,
मतलब इसमें जो विहान ने कुछ इस टाइप से, अगर बर्ड्स के लिए वाटर के लिए जो व्यवस्था की है वो उसने कुछ इस तरीके से व्यवस्था की है सिलिंड्रिकल पोर्शन में। नीचे तो प्लेट लगी हुई है, ऊपर का पोर्शन, ऊपर का जो है वो खाली है, ओपन है। तो इजीली यहाँ पर वाटर फिल कर सकते हैं और वो उसको, बर्ड्स उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो अपने को क्या करना है कि कर्ड सरफेस एरिया इसका अलग निकालना है और बेस का अलग निकालना है, क्योंकि दोनों में अलग अलग शीट यूज की है उसमें। तो समझते हैं कि किस तरीके से करेंगे। अगर सिलिंड्रिकल की बात कर रहे हैं तो इसमें कर्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इसमें आने वाला है कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन, पोर्शन कह सकते हैं इसको। तो ये आ जाएगा आपका 2 पाई RH। तो देखें 222/7, रेडियस इज, इसकी रेडियस और हाइट के बारे में बात कर लेते हैं अपन। थोड़ा सा चलते हैं पीछे और देखते हैं कि कहाँ मिलेगी रेडियस। अगर आप ध्यान से देखें तो using he wanted to have a circular base of the cylinder and searched for another sheet, he found a square sheet 15 by 15 and he got a circular sheet just equal to base of the सिलेंडर कट फ्रॉम 15/30। तो यहाँ से उसके पास रेडियस और ये दोनों चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ से रेडियस आ रही है 7। और अगर आप उसको प्रॉपरली समझें कि एक शीट को अगर हम इस प्रकार से इसके अलोंग, लेंथ के अलोंग अगर फोल्ड करेंगे, तो इस प्रकार से फोल्ड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये उसकी हाइट हो जाएगी, दैट इज 15। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टोटल फोल्ड करने के बाद, मतलब ये पूरा का पूरा एक सर्कुलर पोर्शन बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 पाई R। और अगर आप समझें उसको कि वो कितना गिवन है, मैं आपको बताता हूँ। ये है he got a circular sheet just equal to base of cylinder, वो एक अलग बात है, he wanted to have a circular base। तो यहाँ से 2 पाई R के थ्रू अगर हम उसकी सरकमफ्रेंस को देखें, जिससे कि हमने उसको उसको फोल्ड किया है, कलर्ड प्लास्टिक शीट, रेक्टेंगुलर शीट, he rolled along its length and joined the two opposite ends। तो इसको 44 लेगा और R से वो 44 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 करेगा। तो मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि इसमें जो लेंथ वाला पोर्शन है इसको ही फोल्ड करना है इस तरीके से। फोल्ड करने के बाद वो बनेगी उसकी सरकमफ्रेंस। सो 22, ये आ जाएगा R = 7। इस तरीके से हमने R को यहाँ 7 कंसिडर किया है और हाइट को हमने 15 कंसिडर किया है, क्योंकि यही उसकी हाइट बनेगी उस सिलिंड्रिकल वेसल की। आफ्टर मीन्स कैंसिलिंग देम 22, 2 एंड 15, इसको कैंसिल करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कर्व सरफेस ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन है। अब हम निकालने वाले हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर, कर्व सरफेस बोले या एरिया बोल दें एक ही बात है, सर्कुलर शीट या सर्कुलर बेस। तो ये हो जाएगा πr², दैट इज 22/7। यहाँ भी रेडियस वही रहेगी जो सिलेंडर की रेडियस थी। अ, तो ये हो जाएगी 7 × 7, क्योंकि हमने उसी से ही बनाया हुआ है तो नेचुरली 7 वही आएगा। और ये हो रहा है हमारे पास 154। अगर दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल एरिया होता है 660 प्लस 154। लेकिन एक टास्क अलग अलग करना है कि दोनों के कॉस्ट अलग अलग हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है फ्लेक्सिबल ब्लू कलर प्लास्टिक रेक्टेंगुलर शीट इज ₹3.25। तो हम इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं 3.25 से। 154 इज मल्टीप्लाइड बाय 1.25। और इस प्रकार से हमारे पास दो अलग अलग शीट का रेट आ जाएगा। और हम एक चीज और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि हमको 225 इस टाइप के वेसल्स बनाने हैं। तो 225 मल्टीप्लाई बाय दिस, इन सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आता है 5,25,937.5। इसको हम अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं ₹52,600 के आसपास आ रहा है। ये लैक्स में तो नहीं आएगा, थाउजेंड में आएगा। आई थिंक पॉइंट यहाँ आने वाला है 52,593। तो हम इसको 593 को बोल सकते हैं, लगभग 600। तो आपके पास आंसर जो आने वाला है वो 52,600 के आसपास आंसर आएगा। पॉइंट यहाँ नहीं आएगा, पॉइंट वहाँ आएगा। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन बी होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एनालिसिस और इससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी। और
मेंसुरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि इसमें कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम वगैरह ध्यान रखें, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखें आपकी कौन सी यूनिट इसमें यूज हो रही है. सो दिस मच फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच. गुड डे.